Hello children, I am Poonam Bagga and we are studying chapter 3, pair of linear equations in two variables. In our previous class, we completed question 1 of exercise 3.4 in which we solved some pairs of linear equations in two variables by elimination method and substitution method. Today we are going to complete this exercise and take up the remaining questions. So be ready with your copy and pen as we begin with question number 2. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by the elimination method. Just focus on these words, form the pair of linear equations. Why this has been given? Because here we will be having some word problems. First we will be reading out the question, then we will be forming equations on the basis of the conditions given in the question, and then we will solve by elimination method. So the first one is this one. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. So here we have a fraction. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? So here the numerator and denominator of the fraction are unknown to us. So let us represent them by some variables, say x and y. We begin the solution by assuming let the numerator of the fraction be x and the denominator be y. Then the fraction is x upon y. Now we will form the equations on the basis of the conditions given here. We write according to the question it has been given if we add 1 to the numerator. So we have the numerator x and the denominator is y. If we add 1 to the numerator, so it will become x plus 1 and subtract 1 from the denominator. Denominator में से 1 minus करेंगे तो हमें मिलेगा y minus 1. Then this fraction reduces to 1. So this fraction will become equal to 1. Got it? Let us now solve this part. We have x plus 1 equal to 1 into y minus 1, or simply we can write x plus 1 equal to y minus 1. Let us bring y here and 1 also here. So plus 1 equal to 0. Got it? What we see here is we have brought this y to the LHS. LHS में y को ले आए और ये minus 1 भी LHS में आके plus 1 हो गया और इससे हमें मिल गया x minus y plus 2 equal to 0. ये हो गई हमारी first equation. Then again according to the question let us form the second equation. What has been given? It has been given that it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. अब आप देखिए हमारा फ्रैक्शन है x अपॉन y और इस बार हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं. 1 ऐड किया तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 1 अपॉन 2. नाउ सिंप्लीफाई दिस, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इधर से 1 इंटू वाई प्लस 1 विल गिव अस y प्लस 1. y को इधर ले लेते हैं 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. तो अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई. इनको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं और x और y की वैल्यू मिल जाएगी हमें. लेट अस राइट दीज इक्वेशंस ऑन द नेक्स्ट पेज. द फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. दिस इज द फर्स्ट वन. And the second one is 2x minus y minus 1 equal to 0. ये हो गई सेकेंड इक्वेशन. अब आप देखिए यहाँ पर
y के कोएफिशिएंट्स दोनों में सेम है, कुछ भी दिख नहीं रहा मतलब हम जानते हैं इट इज़ 1. सो 1 इन द फर्स्ट इक्वेशन, 1 इन द सेकेंड इक्वेशन. तो हम इजीली यहाँ पर y को एलिमिनेट कर सकते हैं. पर कैसे? आप देखिए कि दोनों ही माइनस में है. अगर हम ऐड करेंगे तो -1 हमें -2y मिल जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए. हम चाहते हैं ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएं. तो हम यहाँ पर नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन अगर चेंज कर दें, इसका मतलब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इजीली ये -y बन जाएगा +y और दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. सो व्हाट वी राइट हियर इज सब्ट्रैक्टिंग both equations we get, let us write the first one, x minus y plus 2 equal to 0 और यहाँ पर हो गया 2x minus y minus 1 equal to 0. क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो ये सेकेंड इक्वेशन है इसमें सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे. दिस माइनस विल बिकम प्लस, दिस विल बिकम प्लस, दिस विल बिकम माइनस और यहाँ भी माइनस. नाउ हैव अ लुक, इट्स 1 minus 2, it will be -1x or simply -x. -y plus y will be cancelled. 2 plus 1, it will be +3 equal to 0 minus 0 is nothing but 0. From here we get -x equal to -3 or we can say x is equal to 3. ये मिल गई हमें x की वैल्यू. अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो ये x की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी रख सकते हैं. लेट अस पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1. सो वी राइट पुटिंग x equal to 3 in equation 1, we get, have a look, it's x minus y plus 2 equal to 0. Let us replace this x by 3. 3 minus y plus 2 equal to 0. ये y यहाँ माइनस में है, इसे हम RHS में ले जाते हैं और हमें मिलेगा 3 plus 2 equal to y, और we can say that y is equal to 5. So this is the value of y. Now what was x? X was the numerator, just recall, and y was the denominator. So our fraction is 3 upon 5. We can easily write the final answer here. Let me make some more space. Yes, therefore the fraction is 3 upon 5. This is the answer. And you can always verify your answer by replacing these values of x and y in the equations. Let us consider the conditions. आप देखिए 3/5 है हमारा फ्रैक्शन. अगर हम न्यूमरेटर में +1 कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में -1 करें तो क्या मिलेगा? आप देखिए 3 + 1 is 4, 5 - 1 is 4, 4/4 it's 1. तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. देखिए आप, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1, देन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, देन इट रिड्यूसेस टू 1. तो वही हो रहा है हमारे साथ. और अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, हमारा एक्सप्रेशन है 3/5, और सिर्फ अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो ये बन जाएगा 3/6, एंड इफ़ वी कैंसिल इट, इट विल बिकम 1/2. तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो हमें ये मिल रहा है 1/2. तो इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है. गॉट इट? देन वी मूव टूवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन. 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? So here there are two people, Noori and Sonu. और यहाँ बात हो रही है एज की 5 years ago and 10 years later. तो अभी पहले हमें प्रेजेंट एज कुछ अज्यूम करनी होगी, तभी हम 5 years ago और 10 years later की एज निकाल सकते हैं. So let us begin the solution. Let the present age of Noori be x years, and let us assume
the present age of Sonu. Let it be y years. Okay, now we will take the first condition. It has been given 5 years ago. So, let us take the age 5 years ago. Okay. Noori was how much years old? आप देखिए नूरी अभी प्रेजेंटली x years old है, तो 5 years ago 5 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी? बिल्कुल, we will subtract 5. So Noori was x minus 5 years old. And Sonu, what was Sonu's age 5 years ago? It would have been y minus 5 years old. Got it? Now let us form the equation. 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. Then, according to the question, Noori was के लिए आप equal to का साइन दिमाग में ले सकते हैं. Noori was thrice का मतलब हुआ 3 times, 3 into thrice as old as Sonu. So we can write the age of Noori. It is x minus 5. This is equal to thrice means 3 multiplied by the age of Sonu. और Sonu की 5 years ago age रही है y minus 5. बस अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और हमें पहली इक्वेशन मिल जाएगी. Let us simplify it. We will get, let me make some space first. We will get x minus 5 equal to 3y minus 3 5s are 15. Let me bring this y to the LHS. X minus 3y equal to minus 15 plus 5. This implies x minus 3y is equal to minus 10. This is the first equation formed. ठीक है. Next we will form second equation by the second condition given in the question. So we move towards the second condition. Now we will talk about the age 10 years later. 10 years later, Noori will be how much years old? अभी आज x years old है Noori, तो 10 साल बाद it will be x plus 10. So x plus 10 years old. And Sonu will be y plus 10 years old. I hope you are getting it. Okay. Now let us move towards the condition. According to the question, it has been given that 10 years later Noori will be twice. Twice means 2 into the age of Sonu. So we write here Noori's age, it's x plus 10. It will be twice means 2 times y plus 10 Sonu's age. बस अब हमें इसे सिंप्लीफाई करके सेकेंड इक्वेशन लानी है. We simplify it by opening the bracket. 2y plus 2 10s are 20. Now bring this y to the LHS. X minus 2y और ये हो गया 20 minus 10. ये 10 RHS में चला गया. So x minus 2y is equal to 10. This is your second equation. So here we have both the equations. First one is x minus 3y equal to minus 10 and second one is x minus 2y equal to 10. Let us write these equations together. The equations are x minus, let me just have a look,
minus 3y equal to minus 10. This one is the first one, and then x minus 2y equal to 10. x minus 2y equal to 10. This is the second one. अब हमें इन्हें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से. तो आप यहाँ देखिए x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो सेम है 1 and 1. तो हम इजीली x को एलिमिनेट कर सकते हैं. और यहाँ आप देखेंगे दोनों ही प्लस में है, तो हमें एक इक्वेशन में साइन चेंज करने होंगे. इसका मतलब हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है. सो वी राइट हियर सब्ट्रैक्टिंग. वी कैन सब्ट्रैक्ट either equation 1 from equation 2 or equation 2 from equation 1. So let us subtract equation 1 from equation 2. What we get? Let me write, first we will write equation 2 now, क्योंकि from के बाद जो लिखते हैं वो पहले लिखा जाएगा. So x minus 2y equal to 10 ये पहले लिख लिया, और नीचे आ गई x minus 3y equal to minus 10. चेंज द साइन, ये प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस, माइनस से प्लस. नाउ x minus x will be cancelled. minus 2 plus 3y, so this will give us 1y or simply y, and 10 plus 10 it is equal to 20. और यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई है. Now we need to find the value of x. For this we will substitute this value of y in any of the two equations. Substituting y equal to 20 in equation 2, we get, what do we get? Let us have a look. x minus 2 into y, y की जगह हम रख रहे हैं 20 equal to 10. ये हो गया x minus 40 equal to 10, और this will give us x equal to 50. ये 40 RHS में चला जाएगा और प्लस हो जाएगा. So x is equal to 50. So now we have the present age of Noori as well as Sonu. आप देखिए x किसकी एज थी? Noori's present age. So we can write Noori's present age is 50 years and Sonu's present age is how much? 20 years. Again, you can check your answer by replacing these values in the conditions given in the question. Let us have a look at the question. It says that 5 years ago, let us see, today they are 50 and 20 years old. तो 5 years ago इनकी एज हो जाएगी 50 minus 5 45, और इनकी एज हो जाएगी 20 minus 5 that is 15. और अब आप देखिए कि नूरी इज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. आप देखिए 45 इज इक्वल टू 3 times 15, और यही तो क्वेश्चन में दिया है. It has been given 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. और आप देखिए 3 times एज आ रही है. और इसी तरह से अगर हम 10 years later की कंडीशन को देखें तो आप देखेंगे कि 50 plus 10 it's 60, और 20 plus 10 it's 30, and of course 30 into 2 it's 60. और यही कहा गया है 10 years later Noori will be twice, that means 2 times the age of Sonu. तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं. इसका मतलब हमने बिल्कुल सही आंसर निकाला है. Got it? Now we move towards the third part. The sum of the digits of a 2-digit number is 9. Now we have a 2-digit number, and in this we will be having 2 digits, 1's place digit and 10's place digit. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. तो यहाँ हमें यूनिट्स प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट दोनों नहीं दिए हैं, दोनों ही अननोन है, और उन्हें हम एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे. सो वी बिगिन. लेट द टेंस प्लेस digit
be x and ones place digit be y. Then the number is, what will be the number? We will write it in the expanded form. जो टेंस प्लेस डिजिट है वो ऑब्वियसली 10 से मल्टीप्लाई होगा और वंस प्लेस डिजिट ऐड होगा. सो द नंबर विल बी 10x प्लस वाई. अगर आप देखना चाहें, लेट अस टेक द नंबर से 62. तो यहाँ आप देखेंगे कि ये 6 जो है टेंस प्लेस डिजिट है, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और वंस प्लेस डिजिट को ऐड करते हैं तो 60 प्लस 2 हमें मिल जाता है 62. तो जब भी हम किसी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे 2 डिजिट नंबर का, तो टेंस प्लेस डिजिट 10 से मल्टीप्लाई होता है. वही हमने यहाँ किया है. टेंस प्लेस डिजिट हमारी x है तो उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया 10x प्लस वाई. ये हो गया 2 डिजिट नंबर. नाउ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स. हम अभी देख रहे हैं यहाँ पर रिवर्स भी करना होगा डिजिट्स को, तो वो नंबर क्या होगा? द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन reversing the digits this will be what? reversing the digits मतलब अभी जो टेंस प्लेस डिजिट है वो तो वंस प्लेस डिजिट बन जाएगी और वंस डिजिट टेंस डिजिट बन जाएगी. रिवर्स कर देंगे. अभी हमारा नंबर किस तरह से होगा? 10x प्लस वाई. कुछ अगर आप इमेजिन करें x और y, और फिर रिवर्स कर देंगे तो y और x, और एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिखेंगे इसे 10 टाइम्स y प्लस एक्स. क्योंकि अब ये टेंस प्लेस डिजिट है तो ये 10 से y मल्टीप्लाई होगा. तो ये हो जाएगा द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, इट विल बी 10y प्लस एक्स. अब हमारे पास डिजिट्स हो गई, नंबर्स हो गए. अब हम इजीली कंडीशंस के अकॉर्डिंग इक्वेशंस बना सकते हैं. देखिए क्या दिया है, द सम ऑफ द डिजिट्स इज 9. तो पहली कंडीशन तो ये बड़ी इजी वाली हमें दिख रही है. According to the question, sum of digits, digits है x और y, उनका सम हो गया 9. ये बड़ी इजी इक्वेशन है और इसे हम नंबर 1 दे रहे हैं. And what else has been given? It has been given that 9 times this number is, इसके लिए आप equal to इमेजिन कर लीजिएगा. 9 times this number is equal to twice the number obtained by reversing the order of digits. So 9 times this number, 9 times this number, और नंबर क्या है हमारा? 10x plus y. ये देखिए आप 10x plus y. तो 9 times this number is equal to 2 times the number obtained on reversing the digits. और वो कौन सा नंबर है? 10y plus x. ठीक है, आप ये समझ रहे हैं ना? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स. बस अब हमें ये ब्रैकेट्स ओपन करके सिंप्लीफाई करना है. इट विल बी 9 10s 90x प्लस 9y इक्वल टू 2 इंटू 10 20y प्लस 2x. x, let us bring it here, it will be minus 2x and 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0. कुछ भी नहीं बचेगा RHS में, और हमने यहाँ पे x और y दोनों टर्म्स LHS में ले ली. 90 माइनस 2 इट विल बी 88x. 9 माइनस 20 इट्स माइनस 11y इक्वल टू 0. आप देखेंगे कि 88 और 11 दोनों ही 11 से डिविजिबल हैं, तो हम पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर लेते हैं और हमें मिलेगा 8x माइनस 1y इक्वल टू 0. डिवाइडिंग बाय दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो हियर वी हैव बोथ द इक्वेशंस. ठीक है, अब हमें इन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है. तो आप देखिए y के साथ कोई भी नंबर नहीं है, मतलब 1 है दोनों ही इक्वेशंस में, और ये तो एक प्लस का और एक माइनस का है, इजीली कैंसिल भी हो रहे हैं. तो यहाँ हम इक्वेशंस को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही ये इजीली कैंसिल हो रहे हैं. तो फिर साइन चेंज नहीं करना है हमें, यानी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ऐड करना है.
So what we take here is adding both equations. Adding equation 1 and 2, we get, let us write x plus y equal to 9 and 8x minus y equal to 0. Add करिए आप, y minus y will be cancelled, 8 plus 1 it will become 9x equal to 9 और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल रही है 9/9 और we can say x is equal to 1. ये हमें मिल गई टेंस प्लेस डिजिट, क्योंकि हमने x किसे माना था, टेंस प्लेस डिजिट को, और वो हमें मिल गई है 1. अब हमें वंस प्लेस डिजिट, इसका मतलब y की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हम ये x की वैल्यू रख सकते हैं इक्वेशन 1 में. लेट अस प्लेस इट हियर. पुटिंग x equal to 1 in equation number 1, we get equation 1 is x plus y equal to 9 and now 1 plus y equal to 9. यहाँ से y की वैल्यू मिल गई हमें 9 minus 1, that is 8. And so the required number is 1 and 8 18. 1 तो हो गई टेंस प्लेस डिजिट, देखिए आप यहाँ पर 1 हो गई टेंस प्लेस डिजिट और ये y हो गई वंस प्लेस डिजिट, that is 8 here. Got it? Now the number is 18. Let us verify whether the answer is correct or not. तो हम इसको दोनों डिजिट्स को अगर हम रिवर्स कर दें तो ये हो जाएगा नंबर 81 और करके देखते हम 9 times 18 is it equal to 2 times 81? 2 times 81 is 162 and 9 times 18 is also 162. तो आप देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं. 9 times the original number is 2 times the number obtained on reversing the digits. हमारी कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है और इसलिए ये आंसर बिल्कुल सही है. तो ये आप अपने रफ पार्ट में कर सकते हैं चेकिंग और अपने आप ही देख सकते हैं कि हमने सही किया है या नहीं. Got it? Then we have the next one. Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. यहाँ दिया है कि मीना बैंक से 2000 रुपीज़ विड्रॉ कर रही है और उसने बैंक से 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ नोट्स ही मांगे हैं कि हमें 2000 रुपीज़ दीजिए रुपीज़ 50 और रुपीज़ 100 में ही, और टोटल 25 नोट्स मिले मीना को. अब हमें बताना है कि 50 रुपीज़ के कितने नोट मिले और 100 रुपीज़ के कितने नोट मिले. गॉट द क्वेश्चन? तो यहाँ हमें ये नहीं पता कि 50 रुपीज़ के कितने नोट हैं और 100 के कितने, तो इन्हें हम x और y मान के चलेंगे. जो पूछा है, जो अननोन है, उसे हम x और y मानते हैं. पहला स्टेप ही यही रहेगा हर क्वेश्चन में. सो वी बिगिन. Let the number of rupees 50 notes be x and the number of rupees 100 notes be y. ठीक है. अब हम ये जो x और y मानने के बाद जो कंडीशंस दी हैं उसके बेसिस पे इक्वेशंस बनाएंगे. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ नोट्स, टोटल नंबर ऑफ नोट्स ये कितने दिए हुए हैं आप देखिए, 25 notes in all. So the total number of notes will be x plus y equal to 25. ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन जो है easy one. ठीक है. Next what has been given? Since we are taking rupees 50 and rupees 100 notes and the total amount is 2000. So how we will connect this relationship?
Let me take some new page. Also, अब आप देखिए एक नोट की वैल्यू है 50 रुपीज़. अगर हम 2 नोट लें तो 2 इंटू 50 100 हो जाएगा. ऐसे ही 3 नोट्स लें 50 रुपीज़ के तो 3 इंटू 50 हो जाएगा, दैट विल बी 150. पर यहाँ हम कितने नोट्स ले रहे हैं? यहाँ हम ले रहे हैं x नोट्स. तो इसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 50 रुपी नोट्स का? 50 इंटू x. सो वी कैन से also the total amount, this will be equal to 50 into x. ये तो हो गया अमाउंट 50 रुपी नोट्स से. और फिर हम ले रहे हैं y नोट्स 100 रुपीज़ के. तो कितना अमाउंट हो जाएगा टोटल? अगर हम 1 नोट लेंगे 100 का तो 100 रुपीज़, 2 नोट्स लेंगे तो 2 इंटू 100, ऐसे ही 3 नोट्स लेंगे तो 3 इंटू 100. और यहाँ हम ले रहे हैं y नोट्स. तो y into 100 will be the amount of rupees from 100 rupee notes. 100 into y. Now this amount has been given equal to 2000. और आप देखेंगे ये तीनों ही नंबर्स 50 के मल्टीपल्स हैं. 50 से हम डिवाइड कर सकते हैं और एक ईजी इक्वेशन मिल जाएगी. 50 से डिवाइड करेंगे तो 50 अपॉन 50 इट विल बी 1 और सिंपली x. 50 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 और साथ में y. और 50 से 2000 को डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 40. ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन. अब आप देखिए फर्स्ट और सेकंड. ये तो है फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर भी x है और सेकंड इक्वेशन में भी x है, यानी x का कोएफिशिएंट सेम है 1 and 1. तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि अभी दोनों प्लस में है. हम चाहते हैं एक का साइन चेंज हो जाए और माइनस में हो जाए, जिससे x माइनस x कैंसिल हो जाए. तो इसलिए हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे. वी राइट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2. We get, let me write the first equation, it is x plus y equal to 25 and the second one is x plus 2y equal to 40. सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज हो जाएगा और x माइनस x will be cancelled. 1y minus 2y it will be minus y and 25 minus 40 it will be minus 15. यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इससे y will be equal to 15. और इसका मतलब y क्या था? हमने लिया था नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स, वो था y. और इसलिए 15 नोट्स विल बी देयर फॉर रुपीज़ 100. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो लेट अस प्लेस दिस वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन. वी राइट पुटिंग y equal to 15 in equation 1. We get the first equation is x plus y equal to 25. So we can write x plus 15 equal to 25. और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 25 minus 15 it will be equal to 10. So this means that x is equal to 10. और x क्या है? नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स. तो हमें मिल गए रुपीज़ 50 नोट्स ऑल्सो and the number of rupees 100 notes also. We write the final answer in this way. Hence, there are 10 notes of rupees 50 and 15 notes of रुपीज़ 100. और आप देखिए 10 प्लस 15 इट्स 25. तो नंबर ऑफ नोट्स, टोटल नंबर ऑफ नोट्स इट्स 25. और अगर हम चेक करना चाहें तो आप देखिए ये 50 रुपी नोट्स हैं 10. सो 10 इंटू 50 ये हो गया अमाउंट, प्लस 100 रुपी नोट्स हैं 15. तो इससे अमाउंट मिलेगा हमें 15 इंटू 100. चेक करते हैं कितना मिल रहा है. ये हो गया 500 और ये हो गया 1500. टोटल अमाउंट आ गया 2000. ये रफ पार्ट कर रही हूँ मैं, आप भी इसको रफ में चेक कर सकते हैं. और आप देखिए 2000 रुपीज़ जो अमाउंट मीना ने बैंक से लिया था वही हमें मिल रहा है. सो द आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट वी हैव द लास्ट वन.
A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the books she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक लाइब्रेरी से अगर हम बुक लें तो वहाँ पर 2 तरह के चार्ज हैं. एक तो फिक्स्ड चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 डेज. 3 डेज के लिए एक चार्ज है जो फिक्स्ड है, और 3 डेज के बाद अगर आप बुक रखते हैं अपने पास तो पर डे आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना होगा. सो एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर. देयर आफ्टर मीन्स आफ्टर द 3rd डे इफ़ यू कीप द बुक देन यू विल हैव टू पे द एडिशनल चार्ज. और यहाँ पर सरिता ने 27 रुपीज़ दिए फॉर कीपिंग द बुक 7 डेज, और सूजी ने 5 डेज बुक रखी और उसके लिए 21 रुपीज़ चार्ज पे किया. तो हमें बताना है कि फिक्स्ड चार्ज कितना है और पर डे एक्स्ट्रा चार्ज आफ्टर 3 डेज कितना है. सो वी अज्यूम बोथ ऑफ देम, दिस बी x एंड दिस बी y. वी बिगिन. लेट द fixed charge be rupees x and the additional charge per day be rupees y. Okay, then according to the question, let us write down the equations now. आप देखिए सरिता ने 27 रुपीज़ चार्ज पे किया फॉर 7 डेज. तो 7 डेज में से 3 डेज का चार्ज तो कितना रहेगा x रुपीज़, और बाकी कितने दिन बच गए? 7 में से 3 गए, 4 डेज बच गए. 4 डेज के लिए पर डे y रुपीज़ चार्ज होगा. तो एक दिन का y, तो 4 डेज का 4y चार्ज हो जाएगा. समझ में आ रही है आपको बात? तो टोटल चार्ज क्या हो गया? x प्लस 4y, और ये टोटल हमें दिया हुआ है 27 रुपीज़. सो दिस इज इक्वल टू 27. वंस अगेन हैव अ लुक. सरिता ने 7 डेज बुक अपने पास रखी, तो 7 में से 3 डेज का चार्ज तो हो गया x रुपीज़, और बाकी 4 डेज का चार्ज पर डे है y रुपीज़, तो 4 डेज का हो जाएगा 4y, और टोटल चार्ज हो गया x प्लस 4y जो दिया है 27. इसी तरह से अगर हम सूजी की बात करें, 5 डेज के लिए बुक रखी है, तो 3 डेज का चार्ज तो फिक्स्ड है x रुपीज़, बाकी बच गए 2 डेज, तो 2 डेज के लिए y रुपीज़ पर डे के हिसाब से 2y हो गया चार्ज, और टोटल चार्ज हमें दिया हुआ है रुपीज़ 21. सो दिस इज इक्वल टू 21. सो दीज आर द 2 इक्वेशंस, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. आई होप यू आर गेटिंग इट. नाउ वी हैव टू सॉल्व. आप देखिए x के साथ कोएफिशिएंट सेम है, तो हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इजीली y की वैल्यू मिल जाएगी. सो वी राइट हियर, और आप देखिए इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 से नंबर्स के अकॉर्डिंग. 1 में बड़े नंबर्स हैं, 2 में छोटे नंबर्स हैं, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्टिंग equation 2 from equation 1, we get, let us write the first one, x plus 4y equal to 27, and then x plus 2y equal to 21. Change the sign. X minus x will be cancelled. 4 minus 2y, it will be 2y, and 7 minus 1, it will be 6 here. और यहाँ से y की वैल्यू मिल गई हमें 6/2, दैट इज 3. ये मिल गई हमें y की वैल्यू. अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम ये y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखते हैं. सब्स्टिट्यूटिंग y equal to 3 in equation 2, we get, how much we get? x plus 2 into y की जगह आप रख रहे हैं 3 equal to 21.
So x plus 6 equal to 21 or x is equal to 21 minus 6, this is equal to 15. So this means x is equal to 15. और x क्या था? Fixed charge. So we can say the fixed charge is rupees 15 and the additional charge per day, it is rupees how much? Rupees 3. ओके अब आप देखिए, अगर हम 7 डेज का टोटल चार्ज निकालें, 7 डेज के लिए 15 तो हो गए रुपीज़ 15 3 डेज के लिए और बाकी बचे 4 डेज, तो 4 डेज का चार्ज हो जाएगा 4 इंटू 3 जो है पर डे का चार्ज, इट विल बी 15 प्लस 4 3 12 इक्वल टू 27. और यही तो हमें क्वेश्चन में दिया है जो सरिता ने पे किया है रुपीज़ 27. और इसी तरह से अगर हम 5 डेज का चार्ज निकालें, 15 तो हो गया 3 डेज के लिए और रिमेनिंग 2 डेज के लिए ये हो गया 15 प्लस 6 दैट इज 21 रुपीज़. तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है. बोथ कंडीशंस आर गेटिंग सेटिस्फाइड. So this was exercise 3.4. Practice these questions once again on your own and try to make some own problems and try to solve them. Soon we will meet again. Goodbye.